चंद्रभागार सागर छातीरे हसुछि नुआ सूरज नुआ ओडिसाटे गढ़िबा पाई कि दौची नुआ संकेत ए माटी गाए इतिहासर गाथा बारस बढ़े धर्मपदर कथा ए माटी गाए इतिहासर गाथा बारस बढ़े धर्मपदर कथा केते पराक्रमर कहानी केते साधु संतंकर बाणी चंडाशोक को धर्माशोक कला दिने एठी ओडियाणी आमे तो बढ़िबु आमे तो लढ़िबु नूतन ओडिशा आमे तो गढ़िबु पूर्ण हेब आम स्वप्न एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण ए माटीर सन्थ भीम भोई तांको बाणी मने सदा थाउ प्राणीक आरत दुख प्रमित देखु देखु के बासहु ओ माटी गाए मधु गोप बंधु गंगाधर फकीर मोहन पारଳାର राजा गजपति रामचंद्र भंज मोहन आमे तो कर्मठ कुशली आमे परिश्रमी कारीगरी आमे तो बढ़िबु आमे तो लढ़िबु समय साथी रे आमे तो चलिबु पूर्ण हेब आम स्वप्न एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण संबल को करी निजोग बदले दबा आम भाग्य आमे तो साहित्य आमे तो विज्ञान सबुथिरे परा आमे योग्य ओ आमे तो संस्कार शिखिछु आमे तो सत्कार जानिछु आमे तो बणिक आमे तो कृषक श्रम पाई शिक्षा पाइछु आमे तो पाइक लढ़ुआ आमे तो कुशली ओडिया कालिया घोड़ा रे आमे तो चढ़िबु मधु बाबू संगे आमे तो लढ़िबु रखिबु ओडिशा मान एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण एठू आरंभ नुआ ओडिशा निर्माण आजिर एही वेब व्याख्यान रे समस्त को स्वागत। आजिर एही वेब व्याख्यान विषय हेउची आत्मनिर्भर भारत
ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏ ସଭାକୁ ଆଗେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ ଯିଏକି ନାଇଜରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଏ ସଭାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଗୋଟେ ୱେବିନାର ଚାଲିଛି। ସେ କିଛି 5ଟା ଦେଇଥିଲେ, 4ଟା 5ଟା ବିକ୍ରମ ପରିଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ନାହିଁ ନା କଣ ଶୁଭୁନି କିଛି। ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ଆୟୋଜନ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରଖିଛି, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଥା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଗରୁକତା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ବସେଇବାକୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍କିମ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। এই সময় ভিতরে আমি যেহেতু গবেষক এবং পিএইচডি ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ଗାନ୍ଧିଆନ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଥନୀତି ସେଟା ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ କି ଆମେ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କ'ଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ତା କେମିତି ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ କି ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ ଆଉ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଜଣେ ଗବେଷକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ସେଇ ତିନିଟା ଧାରା ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକକୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକିରେ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଏତିକି ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ଲିଟରେଚରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲିଟରେଚରକୁ ଆଗେଇବା ଭାଷାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଏକ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସଂସ୍ଥା ରସିଆ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜର କଥା ଦେଖିବା, ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବା, ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖି ପଢିକି ସେଇ ଗବେଷଣା ସେ 5 ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ହଉଛି ଆମେରିକା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ
ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବାର ଏକ ତୁଳନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମାନେ ସେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସେ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ରଚନା କରନ୍ତି ତାର ଆଧାରରେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯାହା ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ସେମିତି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ଯେହେତୁ ମୋର ବିଷୟ ନିଜେ ଲେବର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା କଥା କେମିତି ଲେବର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି କେମିତି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଶାଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେ ଏମିତି ଏକ ୱେବିନାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମହୋଦୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି ୱେବିନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ମୋତେ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ ମହୋଦୟ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦାବଳୀ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବି କାରଣ ଆମେ ସେତିକି ସମୟ এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ସନ୍ତକ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଅଧିବାସୀ ହୋଇ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର କେତେ କେତେ ଉପାଦାନ ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନିରନ୍ତର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ, ବାୟୁ ଦେବତା ଅହରହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବାରୁ, ମାତା ଧରିତ୍ରୀ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କାନିପାତି କୋଳେଇ ନେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସମାଜର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଭଳି ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେଲେ
आमे आत्मनिर्भर होई परिबा तार मु केते गुडिये दृष्टांत रखिबी सुदूर अतीतरु मध्य मु किछि दृष्टांत सामना को आनिबी 1612 मसीहारे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे व्यवसाय करिबा पई मोगल सम्राट जहांगीर ठारू सनंद पाइबा समय रे भारतर जीडीपी जहां अर्थनीति को मापिबार एक सूचकांक से समय रे भारतर जीडीपी थिला 24% एवं समग्र विश्व अर्थनीतिर 1/3 रु अधिक से समय विश्व रे दुईटी थिले आमर प्रमुख राष्ट्र भारत एवं चीन चीन अर्थनीति ठारू भारत आहुरी समृद्ध थिला किंतु 1947 मसीह स्वाधीनता प्राप्ति समय रे यही हार 4% को खसी आसिला अर्थात भारत वर्ष एक दरिद्रतम राष्ट्र रे परिणत हो गला। आमे जदि आहुरी अतीत को जिबा तार गोटे झलक आमर जो गौरवोज्ज्वल समृद्धि एवं संस्कृति करि परिबा। प्राय 3000 वर्ष पूर्वे भारतीय माने नौ वाणिज्य केवल पारदर्शिता हासिल करि नथिले भारत महासागर कूले कूले जेतिक राष्ट्र रही समस्त वाणिज्य कारबार एवं वाणिज्य संपर्क स्थापन करथिले। पोर्तुगीज एवं ब्रिटिश भली सेमाने हाथरे कमान धरी वाणिज्य करिबा पई आसी नथिले सेमाने संगरे भारतीय धर्म दर्शन एवं संस्कृतिर वार्तावह मध्य थिले। गोटे महासागर रे भारत वर्ष एमिति आधिपत्य विस्तार करिथिला ताहा भारतर नाम अनुसार भारत महासागर रे परिणत हो गला। सरदार पानिकर तांकर एक पुस्तक रही इंडिया एंड इंडियन ओशन से अति चमत्कार शब्द रे लिखिचंती अन्य समस्तक पई भारत महासागर थिला जलबिंदुर समाहार किंतु भारतीयों पई ये थिला जीवन रेखा। जो समस्त राष्ट्र सहित भारतर वाणिज्यिक कारबार थिला वाणिज्यिक संपर्क थिला सही राष्ट्र रे आज मध्य आमे भारतीयता बा भारतीय संस्कृतिर छाप स्पष्ट देखा पाउछु। विश्वर सर्वबृहत मुसलमान बहुल राष्ट्र इंडोनेशिया रे 20,000 टंका नोट रे आज मध्य श्री गणेशंकर मूर्ति शोभा पाउची। ये होची अतीत रे आम समृद्धि और संस्कृतिर झलक मात्र किंतु स्वाधीनता प्राप्ति परे आमर खाइबा को नथिला। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1949 मसीह किछि आर्थिक अनुदान पाइबा आशारे अमेरिका जाइथिले किंतु राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन गोटे शर्त रखिले अंतर्जातीय स्तर रे अमेरिकार प्रतिटी पदक्षेप भारत जदि निशर्त समर्थन करिवो ताहाले अनुदान मिलिबो। सेतेबेले अमेरिका और रूस मध्यरे शीतल युद्ध आरंभ हो जाई थाए। ये शर्त रे प्रधानमंत्री नेहरू राजी हेले नाही। जदि नेहरू ये शर्त रे राजी हो जाई थांते ताहाले आमे आज आउ गोटे पाकिस्तान रे परिणत हो सारी थांते। फलरे अमेरिका रु आर्थिक अनुदान मिलिला नाही किंतु प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को शासन काल रे सबुज विप्लव आरंभ हैला एवं किछि वर्ष मध्यरे आमे खाद्य शस्य रे आत्मनिर्भर होई पारिले। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान स्लोगान आज मध्य गुरुत्व बहन करे। प्रतिटी राष्ट्र जीवन रे एमिति एक मोड़ आसे जनकर बलिष्ठ नेतृत्व रे देशर भाग्य परिवर्तन संभव हो जाए। आज आमे घोर संकटमय मुहूर्त रे उपनीत होइछंती। आम आगरे दुईटी महासंकट उपनीत। प्रथमतः कोरोना महामारी जहाँ आम देशर केवल आम देशर नुहे समग्र विश्वर अर्थनीति को ध्वंस कर देइछि। द्वितीय आम पड़ोसी राष्ट्र चीन आम सहित सीमा विवाद लगाई दीर्घ दिन धरी युद्ध भली परिस्थिति सृष्टि करुछि। ए दुईटी संकटरु उत्तीर्ण हेबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मास 12 तारिख रे चलित वर्ष मई मास 12 तारिख रे एक समृद्ध आत्मनिर्भर भारत गठन पई देशवासी को आह्वान देइछंती। ये होछि आत्मनिर्भर भारत योजना और एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि। कोरोना महामारी प्रभाव रे सारा विश्व रे 40 कोटी व्यक्ति रोजगार हराइथिबा बेले आम देश रे प्राय 2 कोटी अधिक व्यक्तिंकर रोजगार प्रभावित होइछि।
एवं निकटरे प्रकाशित त्रैमासिक जीडीपी जो सूचकांक आम समस्त विपद घंटी सदृश आमर जीडीपी -24%, अर्थ 24% आम माइनस रे वर्तमान अच्छा संकुचित होती आमर जीडीपी एवं अधिकरु अधिक व्यक्ति वर्तमान रोजगार शून्य होउछंती फल जो मंदावस्था सृष्टि होउची अर्थनीति संपूर्ण भाव ध्वंस विध्वंस हो जाइछि। आम देश केवल आम देश नुहे विश्वर बहु समृद्ध राष्ट्र आमदानी पाई चीन उपरे निर्भरशील किंतु सीमा विवाद जोगु युद्ध भली परिस्थिति सृष्टि होइथिबारु भारत सरकार चीन रु आमदानी होउथिबा द्रव्य उपरे वर्तमान कटकणा लगाइछंती फल रे एई 3 मास मध्यरे जून जुलाई अगस्त एई 3 मास मध्यरे चीन रु आमदानी 25% ह्रास पाइछि। वर्तमान सुधा 224 टी चीन आप आम देश रे निषिद्ध करा जाइछि, बैन करा जाइछि एवं जेतेबेले कौनसी राष्ट्र सहित विवाद सृष्टि हुए चारोटी पंथा माध्यम मुकाबिला करा जाई पारे बा तार समाधान करा जाई पारे। प्रथमटी होछि राजनैतिक, द्वितीय होछि कूटनैतिक, आर्थिक एवं सामरिक। आमे प्रथम तीनोटी मार्ग अनुसरण कर सारिछु एवं से दिगरे प्रयास जारी रही। गोटे मार्ग रही बर्तमान सामरिक पदक्षेप से संपर्क में बर्तमान दुईटी देश विचार करुछंती। 2019-20 आर्थिक वर्ष रे भारत चीन रु जेतिक द्रव्य आमदानी करिथिला तार मूल्य होची $65 बिलियन अर्थात 5 लाख कोटी टंका, प्राय 5 लाख कोटी टंका, जहां आम समुदाय आमदानी रो मात्र 14%। अर्थनीति को सुधारिबा पई ए जो अर्थनीति वर्तमान कोरोना महामारी रो प्रभाव रे प्रतिहत हो जाइछि, ध्वंस हो जाइछि, ताकू सुधारिबा पई वर्तमान एकमात्र मुख्य विकल्प होची उत्पादन। ताही होची आत्मनिर्भर भारत योजनार प्रमुख अंश। आनंदर कथा आम देशर शिल्पपति माने बा शिल्प जगत प्रधानमंत्री ए आह्वान को अति गुरुतर सहित ग्रहण करिसंती एवं ताहार मुकाबिला पाई गोटे नक्शा मध्य प्रस्तुत करिसंती। मार्च मास पूर्वरु गोटे दुईटी मु आपनका आगरे तार जो दृष्टांत रखिबी। मार्च मास पूर्वरु आम देश रे पीपी उत्पादन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जोटा कि कोरोना युद्ध पई जो माने योद्धा माने अछंती से माने पिंदी के जानती, पीपी रे उत्पादन प्राय नथिला। मार्च मास रे मई मास रो प्रथम सप्ताह रे एई उत्पादन आरंभ हैला। प्रथम दिन रो उत्पादन संख्या थिला 1,50,000। वर्तमान 2 मास मध्यरे ये व्यवसाय वर्तमान 7,000 कोटी रे पहुंच सारिछि एवं वर्तमान ये उत्पादन संख्या प्रतिदिन 2 लाख को वृद्धि पाइछि एवं आम स्थान वर्तमान विश्व रे द्वितीय रे अछि। प्रतिरक्षा क्षेत्र रे आत्मनिर्भर हेबा पई प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा करिसंती कि 2024 मसिया सुधा आमे 101 टी द्रव्य आमदानी करिबु नाही। अर्थात वर्तमान जेतिकी द्रव्य प्रतिरक्षा विभाग डिफेंस डिपार्टमेंट रे जहां आमदानी करा जाउची, इंपोर्ट करा जाउची, 2024 भितरे 101 टी द्रव्य आउ आमदानी करिबे नाही। अर्थात से द्रव्य गुडी को सेही प्रोडक्ट गुडी को भारत रे प्रोडक्शन करिबा पई वर्तमान योजना स्थिर होई सारिछि। हमर जेतिकी आमदानी होउची, हमर टोटल इंपोर्ट तार सिंह भाग होउची तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ता होउची 32%। समुदाय आमदानी 32% होउची पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जहां हमें आमदानी जहां हमें उत्पादन करि परिबा नाही, किंतु तार अनेक विकल्प वर्तमान आम आगरे आसी गलानी। वर्तमान आम देशर बहु कंपनी इलेक्ट्रिक कार एवं मोटरसाइकिल उत्पादन आरंभ कलेनी। हुंडई कोना कंपनी रो कार जहां वर्तमान मार्केट को आसी, थरे चार्ज कले 452 किलोमीटर सुरुखुरे चली पारुची एवं 2030 सुधा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से माने गोटे एस्टिमेट करिसंती, आकलन करिसंती 2030 मसिया सुधा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जेति की वर्तमान इंपोर्ट करा जाउची
ताहार प्राय 75 भाग आउ आमे इंपोर्ट करिबा नाही आमे ये क्षेत्र रे मध्य आत्मनिर्भर होई परिबा तेल को बाद देले जो समस्त क्षेत्र रे हमर आमदानी सर्वाधिक रहिछि तार एक तालिका एसोचेम प्रस्तुत करिछि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचेम तार एक तालिका तयारी करिसंती सेथिरे 15 गोटी प्रोडक्ट रो तालिका रहिछि इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेथिरे मुख्य रहिछि तार उत्पादन पई सेमाने भारत सरकार सहित वर्तमान वार्तालाप चली तार एक नक्शा प्रस्तुत होउछि एवं सेमाने कहउछंती कि 2024 मसिया सुधा आमे तार 75 भाग प्रोडक्ट आमे देश रे उत्पादन करि परिबा ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना आरंभ हैला ये योजना की आरंभ हेबा मात्रे ये योजना की घोषणा हेबा मात्रे समस्तक भितरे समृद्ध भारत गठन करिबा पई एक संकल्प स्थान नै सारिछि आमे अनेकांश रे 2024 मसिया सुधा जहां आशा करा जाउछि अनेक क्षेत्र रे प्राय 75 भाग आमे आत्मनिर्भर होई परिबा आउ एक प्रमुख आमदानी होउछि सोना हीरा आदि मूल्यवान धातु गहना प्रति आम मानसिकता रे जो दुर्बलता रही ये होची तारी प्रतिफलन समुदाय आमदानी जो ये होची प्राय 12%। आत्मनिर्भर भारत निर्माण रे अन्य एक प्रमुख दिग होची चीन रो आर्थिक शक्ति को प्रतिहत करिबा सीमा विवाद रे हमर 20 जन सेना शहीद हेबा परे भारत सरकार चीन सहित वाणिज्य क्षेत्र रे कठोर पदक्षेप ग्रहण करिसंती जहां हमको प्रत्यक्ष भाव आत्मनिर्भर हेबारे सहायक हेब सीमा विवाद पूर्व जातीय राजपथ टेलीकॉम रेलवे महाराष्ट्र सरकार हरियाणा सरकार एवं आहरी अनेक विभाग चीन रो विभिन्न कंपनी सहित जो वाणिज्य चुक्तिनामा प्रस्तुत करिथिले किंतु भारत सरकार ठारू चीन रे जो सीमा विवाद परे भारत सरकार ठारू इंगित पाइबा परे चीन रो प्राय 50,000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट बातिल करा जायछि एवं भविष्य रे चीन रो कोनोसी कंपनी सहित वाणिज्य चुक्तिनामा पई सरकारी अनुमति मिलिबो नाही ये निर्देशनामा मध्ये जारी करा हाइछि आम देश रे चीन रो पुंजी निवेश ऊपर मध्ये प्रतिबंधक लगा जायछि आम देश रे 5G नेटवर्क प्रसार पई चीन रे एक कंपनी को अनुमति मिलिथिला किंतु सरकार ताहाको बातिल करिबा परे जुलाई मासरे रिलायंस जियो सारा देश रे 5G नेटवर्क प्रसार पई प्रस्तुत हे सारिछि 6 मास पूर्वे रिलायंस कंपनी इस प्रकार चिंता करि नथिला किंतु आज से संपूर्ण भावे 5G नेटवर्क प्रसार करिबा पई प्रस्तुत हे सारिछि सेही भली टेक महिंद्रा मध्य किछि दिन तळे बोधे 5-7 गोटे सप्ताह पूर्वे टेक महिंद्रा कंपनी मध्य 5G सर्विस जोगे देबा करि सारले ये होची आत्मनिर्भर भारत निर्माण निमंते शिल्प जगतर संकल्प एवं आम समस्तंकर संकल्प केवल शिल्प जगत ऊपर दायित्व नष्ट करी आमे नीरव रही पारिबा नाही जणे रुचिमंत एवं राष्ट्रवादी ग्राहक भावे आमर मध्य बहु भूमिका रही अनेक बंधुंकर मने थिबो 1977 मसीह कोका कोला कंपनी आम देशर आईन मानिबा पई मना करिबारु शिल्प मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस कोका कोला कंपनी को आम देशर बाहर कर देथिले एवं सही समय रे आम देशर बहु कंपनी मृदु पानीय क्षेत्र रे प्रवेश कले जो माने आज मध्य आम देश रे व्यवसाय रे शक्तिशाली हे सारिछंती एमानकर मान सेमानकर क्वालिटी मध्य बहुत उच्च मानर बड़ कथा होची वस्तुर मान एवं मूल्य समान थिबा बेले जने ग्राहक देशर स्वार्थ को अग्राधिकार रखी अग्राधिकार क्षेत्र रे देशर स्वार्थ को रखिले आत्मनिर्भर भारत योजना सफल होई पारिबो आत्मनिर्भर भारत योजना एक आकस्मिक घोषणा नुहे अनेक भागुथिबे बोधे कोरोना महामारी किंबा हमर चीन सहित विवाद लागिबा फल रे भारत सरकार बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये योजना घोषणा करिसंती किंतु ये योजना आकस्मिक नुहे
बहु पूर्व यार प्रस्तुति आरंभ हो सारी कोरोना महामारी प्रभाव हुए तो यह घोषणा विलंब है। यही परिप्रेक्षी में गोटे दृष्टांत नवा खेलना इंडस्ट्री टॉय इंडस्ट्रीज आत्मनिर्भर भारत योजना घोषणा हबार बहु पूर्व फेब्रुआरी मासरे भारत सरकार आम देश को आमदानी होता खेलना उपरे 200% कस्टम ड्यूटी लगाई। आम देशर जेतिकी खेलना तार 85% खेलना चीन रु आमदानी होची। एबे निकटरे सरकार घोषणा करिसंती सेप्टेम्बर 1 तारिख रु चलित मास 1 तारिख रु चीन समेत विभिन्न देशर आमदानी होता 371 प्रोडक्ट आइटम उपरे तार मान निर्धारण करने बाध्यतामूलक अटे। अर्थात जते बेले गोटे प्रोडक्ट आमदानी होची तार शिपमेंट आसी पहुंचबा परे तार मान बीएससी जोटा कि आमे आमर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तार अधिकारी माने जिबे तार सैंपल नेबे जदि से क्वालिटी आमर जो क्वालिटी अनुसार आम देश में जो प्रोडक्ट रहिबा कथा से क्वालिटी से मान निर्धारण होबा परे से आमदानी को सम्मति प्रदान करा जिवो स्वीकृति प्रदान करा जिवो। आम देशर जनसंख्या तुलन में खेलना कारोबार बहुत कम रही। आपण माने जानिथिबे कि गत मासरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर मन की बात रे शिशु मानक खेलना शिल्प उपरे समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिले। आम देशर शिल्पी कारीगर एवं शिल्प जगत को नूतन दृष्टिबासी खेलना निर्माण करने आह्वान देते। विश्वर 7 लाख कोटी टंकार जो खेलना कारोबार होची आम देश में तार परिमाण मात्र 0.5% 1% भी नुहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांका मन की बात रे कहिथिले जदि आमे एई 0.5% को 10% को नहीं जिबा ता फलरे विश्व रे जेतिकी खेलना कारोबार होची तार 70,000 कोटी टंका आम भाग पड़िबो एवं सेथिरे आमर इंडस्ट्री आमर शिल्पी कारीगर माने सेमाने मध्य लाभवान हो पारिबे। एवं नूतन शिक्षा नीति जहाँ वर्तमान प्रणयन करागला सेथिरे शिशु मानकु 3 वर्ष रु 6 वर्ष जो शिशु मानकु अंगनवाड़ी रे शिक्षा प्रदान करा जिवो सेथिरे खेलना एक प्रमुख अंश ग्रहण करिवो। मन की बात कार्यक्रम रे नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर आप चैलेंज से जो गोटे कंपटीशन हेतिला एवं सेथिरे 9000 रु अधिक स्टार्टअप कंपनी यंग इनोवेटर्स अंशग्रहण करथिले। तार विजेता मानकु से धन्यवाद जणाई कहिथिले आम भितरे जो सामर्थ्य रही आमर जो यंग टैलेंटेड समस्त रही प्रतिभा आम भितरे जो प्रतिभा रही जो सामर्थ्य रही तार परिप्रकाश निमंते सरकार वर्तमान समस्त द्वार खोलीदेवे। ये आत्मनिर्भर योजना को सफल करने सरकार को तरफ आश्वासन दि जाउची। मोर एक व्यक्तिगत अनुभूति मुझे आपण मानक आगे रखी। मोर जने शिल्पी बंधु केशुदास सी तांकर किसी सहयोगी को नहीं जो कंढई तैयारी आरंभ कले कारण तांकर अनेक शिल्पी बंधु से माने तांकर रोजगार प्राय नथिला से माने भाबिले कि जो कंढई बिके तांकर से गुजरान मेंटे देबे तांकर परिवार चलेबे। बाहागर बेदी रे छोट छोट जो कंढई आपण मन जानिथिबे कि माटी रे तैयारी करा जाए तापर त निया रे पड़ी जोरे रंग दिया जाए छोट छोट अति सुंदर कंढई सब। बाहागर बेदी रे जो कंढई रहिले नव दंपतिंकर शुभ हेबो यही मर्मरे कन्या घर को जाई बिकिबा आरंभ कले। वर्तमान एमिति समय आसिला प्रभेता एते लोकप्रिय हैला कि बाहागर बेदी रे जो कंढई रहिबा बाध्यतामूलक हो गला। किछि अंचल रे वर्तमान बाहागर बेदी रे जो कंढई रहिबो एक बाध्यतामूलक हो जाइछि। जोठी सब बाहागर सामग्री मिलुची जोठी जो हमर पूजा पाई जो सामग्री मिलुची सेठी मध्य जो कंढई वर्तमान मिलुची। वर्तमान राज्यर विभिन्न अंचल रे जो कंढई बाहागर बेले गोटे बाध्यतामूलक सामग्री रे परिणत हो जाइछि। ये होची आत्मनिर्भर भारतर योजना एवं तार सफलता। केवल शिल्प जगत
किंबा उत्पादक माने नुहंती समृद्ध भारत गठन दायित्व आम समस्तंकर आत्मनिर्भर भारत होउची समृद्ध भारत एक बलिष्ठ अंग बलिष्ठ अंश मु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्द रे मोर वक्तव्य शेष करी कारण मु कही मोर वक्तव्य सारला परे 20-25 मिनिट भितर मोर वक्तव्य सारिबा परे आमे ये संपर्क रे विस्तृत आलोचना मध्य करि परिबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द रे मोर वक्तव्य सारिबा समय मु कहिबी कारण तांकर शब्दावली अत्यंत प्रेरणादायी। से कहउछंती इंटेंट इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन these 5 things are important to speed up India's development and make it Atmanirbhar. Intent, inclusion, investment, infrastructure and innovation. 5 I's. तारी पर से गुरुत्व दे कहउछंती एगुडी का होची हमर समृद्धि एवं विकास निमंते अपरिहार्य एवं एगुडी का जते बेले पूर्ण हे जीवो सेते बेले हम आत्मनिर्भर हे परिबा। से आउरी मध्य कहउछंती अति दृढ़ कंठरे कहउछंती I have complete trust on India's talent, technology, innovation and intellect. I have full faith on farmers, entrepreneurs and industry leaders. That's why I am repeating, yes, we will get back our growth to the former position. मु मध्य नरेंद्र मोदी को सहित तालमेल कहिबी ये जो संकट समय रे हम उपनीत होइचे आम निकटरे जो संकट कोरोना महामारी रे हमर जो अर्थनीति ध्वंस हो जाइछि नष्ट हो जाइछि आमे वर्तमान -24% रे रहितति पुणी हमर संकल्प पूर्ण इच्छा शक्ति बल रे आमे पुणी एक समृद्ध भारत गठन करि परिबा। समस्त को धन्यवाद। नेटवर्क कनेक्शन फेल हला जगन्नाथ समस्त श्रीपाल जी आम तो वक्ता अभिभाषण शुणी सारी जो माने डिस्कशन रे भाग ने जो प्रश्न किसी पचारिया चाहिए एबे से हमर वक्ता को पचारि पारंती एवं आमे वक्ता माने से प्रश्न संगे संगे आमे तेणु जो मैंने प्रश्न मैंने यार भी प्रश्न कर अभिशान को जन जो तेणु सर हेमंत मुंडू को अनम्यूट करेंगे प्रेजेंटिंग बंद करेंगे सर हेमंत मुंडू कौन सी बंधु कौन सी प्रश्न पचारे वो प्रकाश आत्मनिर्भर जो विषय गुड़िक उपस्थापन से वर्तमान स्थिति गांधी जो स्वराज थिला गांधी जो निजे आत्मनिर्भर भाव में निजर प्रस्तुति करने जो आर्थिक विकास दिगरे योजना थिला वर्तमान आम शिल्प क्षेत्र में जब प्रযোज्य हुआ ताले संभव हो पारंता कि अभय सर वक्तव्य प्रश्न उत्तर रखु।
द्विवेदी सर आज वक्ता को अनुरोध करा जाउची सेई डॉक्टर प्रकाश चंद्र पाणिग्राही प्रश्न उठा अभय आप अनम्यूट करंतु अभय भाई द्विवेदी सर निजर फोन टा अनम्यूट करी कहले सुभिबो। अभय भाई आपण आम कथा सुनि परछुन तो हां सुनी पाई ना ना मु आर अभय द्विवेदी भाई कहूची अनम्यूट करना तो अनम्यूट दुईटा म्यूट अछि। हाँ ताकर म्यूट अछि हां म्यूट अछि ताकर हां आमे तो सुनी पारुनु ऑडियो खोलन तो अभय द्विवेदी आज्ञा ऑडियो अनम्यूट करंतु। हेलो 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 को मु पत्री कहूची हेलो सुबिला सर नायक मु पत्री कहूची सुधाकर पत्री आज्ञा कोंतो हेलो हां पत्री आज्ञा कोंतो हाँ मु कहया कथा कोन आज्ञा जो पचारले आज्ञा कहले जे महात्मा गांधी जहा कहिथिले सब बेले सेटा सत्य थिला किंतु सेटा इंप्लीमेंटेशन हैला नै काहे हैला नै एबे भी मोदी कहचंदी एटा कोन नुवा कथा कहले कि काहे कि हमरा स्वाधीनता दे बड़ाई जेते बेले हमें भिख मागुथिले सेते बेले काहे कि आत्मनिर्भरशील हवा पे चेष्टा करलेनी लोक सब बेले निजे चेष्टा करिया कथा हमें इंडिया एडे बड़ कंट्री एते बड़ इंटेलिजेंस अछि किंतु राइफल सैनिक राइफल मध्य आमे बाहर किनुचे एवं आमे खाद्य मध्य बाहर आनुथिले जेपर्यंत आमे आनुथिबा सेपर्यंत आम देश केबे माने स्वावलंबी हबो ना एबे जो कहले खेलना आपण गुडीटे ए दीपावली रो जो बत्ती सेगुडा कोन इंडिया करि परिबो नाही सेटा चाइना रु काहे आसुथिला त नुवा कथा किछि नै एबे भी जति हम आनिबा सस्ता रे हबो एवं आमे किछि स्वावलंबी हेबा नाही खाली पैसा तांको दउथबा तेणु समस्ते एम करवा कथा आमे केमेति स्वावलंबी निजे हेबा त नुवा कथा नै कथा होछि खाली कोरोना जोगुरीटा कहि नाही त सब बेले प्रयोज्य किंतु स्वावलंबी हवा पई निजे निजर उत्पादन करिया पई एवं खर्चटा को मध्य कम करिया पई बेकार खर्च कम करिया पई हेले हम देश हेबो बहुत जिंस आमे उड़ेई दउचे बाण फुटेई कि नष्ट करछे बहुत पर्व परवाणी रे पाद्य ये से जते एते एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होछि सब पुणी आमे पुणी अन्य देशर सहाय्य रे करूचे मोस्टली चाइना जो कहले सब प्रकार आमे सेठी आनिबा दरकार पड़ितला एते चाइनीज आप प्लान करबा दरकार हैला चाइना करि परला एते कि आप हम इंडिया रो लोक कोन करि पारि न थांते करंती नाही गूगल आगो केते सब टॉप लोक होछन इंडियन किंतु आमे समस्तकर आप यूज करछे हमर किसी यूज करनी काहे के एमिति हैला एई जो मानसिकता ताकू केही नेता वर्ग ये ऊपर टॉप लोग रहिले लोकों को कहले नहीं ये ना एटा होची तमे निजे जे पर्यंत न करिछ से पर्यंत बाहरु आनी परिबो नाही बाहरु आनीबाटा बंद करो देश ऑटोमेटिकली स्वावलंबी हेबो काना निजे निजर तमे स्वावलंबी हे परिबे आज्ञा आज्ञा मु एठी इंटरव्यू करछि जे आपण माने समते जे पारे प्रश्न पचारंतु ए जो विभिन्न कथा कहले लाभ नै जागर गोटे प्रश्न पचारंतु तो कोन तो प्रश्न शॉर्ट रे पचारंतु प्रश्न जो 5 मिनिट पचारिबा लाभ किछि होबन अरे मु गोटे प्रश्न पचारुछि हां पचारबी समस्त को प्रश्न एकाथरे पचारि पचारबी भारतर भौगोलिक परिस्थिति जहाँ तीन पटे समुद्र अच्छी एवं गोटे कृषि प्रधान देश
तार जलवायु तेणु एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर एवं इको टूरिज्म या पर प्राधान्य देले आमर आत्मनिर्भरशीलता जो उपार्जन ये बढ़िया उपार्जन बढ़िले आम अन्य भाग खर्च कर शिल्प सहित ये भी दरकार सागर शिक्षा भी दरकार कहीं आमर बुद्धिजीवी मैंने जर्मान इंग्लैंड अमेरिका आदि देश को पड़े जाऊँगी केमती ये देश में संविधान कर से भी चिंता कर दरकार तो डॉक्टर राजेंद्र को कहूँ डॉक्टर राजेंद्र हाँ हाँ कहतु आज्ञा कहतु डॉक्टर राजेंद्र कहतु सर बर्तमान देखा ना बर्तमान देश बड़ बड़ उद्योग आमर है रेलवे आमर हूँ एविएशन सब बिकी बर्तमान मास्क को लेकर आत्मनिर्भरशील केमी हम सर मास्क बिकिकी केमी आत्मनिर्भरशील हम बड़ बड़ उद्योग सब करा जो इलेक्शन आसूची से प्रोजेक्ट हाँपाई सब लोक पेट्रोल रेट को 2 गुण टिका रोड पर 3 गुण खर्च करा गोटे गोटे क्षेत्र को आसवा गोटे गोटे क्षेत्र को आसवा हमारा प्रथम प्रश्न था स्वराज आत्मनिर्भर भारत योजना शुणा जाऊँगी सर अभय द्विवेदी सर आप स्पीकर रे कथा होचन तो सेति पे शुणुची स्पीकर को बंद कर एबे कोन तो एबे ठीक है गला सर कुहतु अभय द्विवेदी सर आप स्पीकर रे कथा होतले स्पीकर न होई कि इयरफोन रे कथा होंतु क्लियर सुबिबो सर अनम्यूट करी कहंतु ऑडियोटा अनम्यूट करी कहंतु अभय द्विवेदी सर ऑडियो अनम्यूट करी कहंतु आउ थरे काटी की आउ थरे डिस्कनेक्ट करी कनेक्ट कर दियंतु हां एबे सुबिला क्लियर एबे सुबिला सर सुबुच क्लियर हां हमर गोटे गोटे कथा को आसीबा हमर प्रथम प्रश्न थिला गांधी जी जो स्वराज से जो कहिथिले आमे आत्मनिर्भर हबा गां रे रहिबा जो स्वप्न देखिथिले ता सहित ये आत्मनिर्भर योजनार संपर्क कौन रही प्रथम प्रश्न थिला मुझा से समय शुणुली या भितर विशेष किसी पार्थक्य नहीं केवल समय जहाँ पार्थक्य रही 1947 मसीहा पूर्व 1919 मसीह प्राय 100 वर्ष तले आमर सामाजिक आमर अर्थनैतिक स्थिति जहाँ थिला 100 वर्ष पर संपूर्ण बदली जाइए
जो नियम सेतेबेले सत्य थिला आमे से नियम को वर्तमान लगेई परिबा नहीं केवल तार आत्मा जो सत्य ऊपर से नियम टी प्रतिष्ठित थिला से सत्य टी को आमे आत्मनिर्भर योजना रे लगेई परिबा किंतु अबिकल समान भावरे अबिकल सेम टू सेम गांधीजी प्रतिटी शब्द को आमे वर्तमान लगेई परिबा भाबुची या संभव हेबो नाही कारण परिस्थिति बदल जाइए सामाजिक स्थिति बदल जाइए समय बदल जाइए किंतु से जो आदर्श पर प्रतिष्ठित थिला गांधीजी जो स्वप्न एवं आदर्श थिला से आदर्श एवं सत्य को आमे आत्मनिर्भर योजना रे प्रतिफलित करि परिबा गोटी बड़ कथा होची जेते बेले देश प्रति जेते बेले राष्ट्र प्रति मोर भावना समर्पित रहिबो किंतु ये कहिबा एवं कार्य करिबा भितरे एते फरक रहि जाउची आमे जो मान को लोक प्रतिनिधि बाछुचु जो माने आमर प्रशासक अछंती प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्तर रे यार जो आमे व्यतिक्रम देखुचु तार प्रतिफलन मध्य आम ऊपर पड़ुची गोटे कथा मुझे कहबी सरकार तरफ कह जाउची कि जो माने जो रिहाती नउचंती जो डिस्काउंट नउचंती सेगुडी को जनसाधारण से रिहाती जब आम सिलिंडर गैस सिलिंडर रे हो बा आपन को ट्रेन टिकेट रे हो जो रिहाती मिलुची आपण दया करी देश स्वार्थ रे ताकू से रिहाती को परित्याग करंतु किंतु सेही रिहाती जेते बेले पार्लियामेंट रो कैंटीन रे मंत्री एवं एमपी मान को मिलुची सेते बेले जने साधारण लोक विद्रोह करबा स्वाभाविक जो कथाटी आम पई प्रयोज्य रहउची साधारण लोकटी पई प्रयोज्य रहउची से कथाटी काहे के नेता मानक पई प्रयोज्य है हबो नाही तो ये जो गोटे तारतम्य आसी जाउची जहाँ घोषणा करा जाउची तार कार्यक्रम रे जो फरक आसी जाउची ता फल रे सब व्यतिक्रम हो जाउची किंतु मानसिकता रे परिवर्तन आसिले भाबुची आम ए किछि वर्ष भितरे जो परिवर्तन आसीची एवं आगामी वर्ष रे जो परिवर्तन आसीबो भाबुची हमर आगामी पीढ़ी या पई निश्चित भाबे प्रस्तुत रहिबे आउ किछि कोन अछि कहंतु जो जो प्रश्नटा थिला गांधी जी को ऊपर गांधी जी को अर्थनीति ऊपर आज्ञा आ गोटे माने अवस्था को पढ़िबी जे कि गांधी स्वप्न सेति जे गाँ रे किंबा ग्राम अणु शिल्प क्षुद्र शिल्प किंबा मध्य शिल्प गढ़ उठिबो आज्ञा परिधि आमे अणु शिल्प मध्यम क्षुद्र प्रस्तुत आमर वर्तमान तो ठीक कणकर एमएससी जोटा मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइज जो गुडी रही से गुडी तो ठीक से गुडिकर भाषा ठीक से उदाहरण स्वरूप किंतु आमे ओडिसा मन कर ओडिसा रे कोन से जगह रे आमे अणु हो किंबा क्षुद्र शिल्प आमे किंतु गोटे तापाई तो अनेक जिनस रही आम गोटे निर्दिष्ट गोटे जिला बा निर्दिष्ट गोटे राज्य को नेले से राज्यर जो प्रशासनिक स्तर रही से शिल्प केते दूर अनुकूल परिवेश सृष्टि करेंगे से माने आपन को केते माने बहुत आमर जो अभिज्ञता रही मोर व्यक्तिगत भाव जो अभिज्ञता रही किछि मास तले बोधे 6-8 मास पूर्व हम कोरोना महामारी पूर्व डीआईसी तरफ किछि शिल्प तालीम केंद्र तरफ किसी एंटरप्रेन्योर मान को जो प्रशिक्षण दि जाउथिला तार उद्यापन दिवस रे जने रिसोर्स पर्सन भाव में मत डाकी मु जोग देथिली से माने तांकर जहा अनुभूति कहउतले आपण डीआईसी रे पहुंची गला पर से माने आपण को केमिति भाव में प्रोत्साहन करूचंती गोटे शिल्प करिबा पई आपण गोटे आईडिया नै गले जो माने टेक्निकल मु जो कहिबी जो माने टेक्नोक्राट्स हम एठी नारायण मूर्ति को आनिबी आपण मान जानथिबे कि इन्फोसिस रो से होचन प्रतिष्ठाता से पहिले जो समय से इन्फोसिस आरंभ कले से समय सरकारंकर कटकणा ये गोटे शिल्प अच्छी बोली सरकार जानी नथिले कारण सेते बेले आपनकर लाइसेंस राज लागि रहितिला ये माने जो आईटी सेक्टर आरंभ हैला एमाने विदेशर जो कस्टमर मानकर काम कले एवं सेमान को जो सॉल्यूशन देले इत्यादि काम आरंभ हैला सरकार से सब संपर्क जानी पारिले नाही कारण सरकारंकर ता ऊपर किछि नियंत्रण नथिला बा सरकारंक पई अनुमति किछि आवश्यक नथिला
किंतु वर्तमान आमर जो शिल्प रही से समय गोटे परवर्ती समय नारायण मूर्ति कहते जदि सरकार जानी पारि थांते कि आमे ये सब काम करूचु आम ऊपर एमती कटकणा लगे थांते कि आमे आ बढ़ी पारि न थांतु। तेणु सरकार जो कटकणा रोची प्रोत्साहन बदल राज्य सरकार प्रति प्रशासनिक स्तर में प्रोत्साहन बदल जो कटकणाटी रोची फल जड़े शिल्प आरंभ करने आसीथिबा व्यक्तिटीए जो युवकटीए युवतीटीए से हतोत्साहित होती कि आउ से दिगरे आगु ना ये गोटे साधारण कथा मुझे जनरलाइज टर्म में कौन निर्दिष्ट भाव कहूना कि ये गोटे जनरल एक्सपीरियंस ये आम समस्त गोटे साधारण अनुभूति आपण मीटिंग रे जो मैंने अच्छा समस्त अनुरोध करी आपण गोटे सप्ताह भितर जेकोसी डीआईसी को आपण जानतु गोटे जिल्लार आपण कहिबे मु गोटे शिल्प प्रतिष्ठा करिया पे आसीची आपण की प्रकार उत्साह सुटी पाइबे हम समस्त अनुभूति ये कौन सरकार विरुद्ध रे बा कौन सरकार सपक्ष कथा नुहे ये गोटे दीर्घ वर्ष धरी यही भली परिवेश भितर आम अच्छु ये परिस्थिति आज्ञा कि सरकारी स्तर में प्रोत्साहन टिके अभाव रोचे जो कि जो मैंने शिल्पपति छोट क्षुद्र शिल्प आसवाक चाहूँगी जो मैंने छोट शिल्प जो मैंने कटेज इंडस्ट्री जो मैंने एकदम छोट छोट शिल्प प्रतिष्ठा करने आग्रही से हतोत्साह होती बड़ बड़ शिल्पपति कथा अलग से आसवे 5 लाख कोटी टंका निवेश करेंगे से सरकार डाकिबे से सहित आलोचना करेंगे सी गोटे भिन्न स्तर किंतु जो मैंने 1 लाख 2 लाख 5 लाख टंकार गोटे काम करने चाहूँगी से जमी भाव में प्रोत्साहन मिलवा कथा से प्रोत्साहन मिलूना प्रश्न रखा पत्रिका रखते रमेश मु भाबुची सर वो प्रकाश पाणिक रे कहतली जो आप जो जिनसटा कहिले जे जो प्रत्येक गाँव रो युवक माननकु आगे बृहत शिल्प जरिया रे बृहत शिल्पकार मानकु जो जो जिनिस उत्पादन करिया को दोचु किंतु गाँव गहळी जदि युवक माने जहा किछि सेवारंकर संबल अनुसार उत्पादन करिया पय सक्षम हेबे तांको उत्साहित करा जानता एवं सही द्रव्य बृहत शिल्प माने उत्पादन करिवे नाही जोटा कि हमर क्षुद्र शिल्प और बृहत शिल्प भितर जो तफात रहउची से भली योजना जदि हुआता ताहले आत्मनिर्भर ये कार्यक्रमटा सफल होता बोली मु आशा करछि नहीं आपण जहा गांधीकर विचार थिला तत्कालीन समय जो गांधीकर विचार थिला आजिर यांत्रिक जुगरे मध्य सेही चिंताधाराटा को जदि अपना चाहता ताहले निश्चित भाव रे कार्यक्रम होता बोली मु नहीं आपण कथा ठीक पूरा आपण जहा कहउछंती ठीक वर्तमान मध्य आत्मनिर्भर योजनार जो आत्मा आमे जो तार आदर्श ये आदर्श सहित गांधीजी स्वराजर आदर्श भितर बहुत सामंजस्य रही गोटे कथा गांधीजी कहते जहाँ ये कहूँ कि तार जो कार्यकारी पंथा जो मार्ग ये कार्यकारी हम से पंथाटी वर्तमान एमती भाव में अड़ुआ हो रही जाइए कि जड़े उत्साहित हेब ये कार्य परिवेश सृष्टि करने हूँ बड़ कथा आपणकर स्टार्टअप इंडिया जो आरंभ होता एवं अनेक अनेक कथा रही जहाँ सब आरंभ होता कि तार सफल कार्यकारिता हूँ बड़ कथा आमर मुझे गोटे देवी तार माने एग्जांपल भाव में नेबी कोठारी कमिशन जो आमर शिक्षा व्यवस्था पर जो गोटे कमिशन बसला आपण माने समस्त सुनिचंती कोठारी कमिशन से जो 1964 मसीह कोठारी कमिशन गोटे परामर्श देथिले कि शिक्षा क्षेत्र में आमर बजेट आमर व्यय बराद जीडीपी रो 6% हवा वांछनीय नहले शिक्षार मान वृद्धि हो पारिबो नाही किंतु 1964 मसीह रु 2020 मसीह पर्यंत आम शिक्षा व्यवस्था 3% जीडीपी रो 3% रु अधिक जाई पारलु नाही आम जेते बेले
अंगनवाड़ी शिक्षा कथा बर्तमान आसी बर्तमान शिक्षा नीति बहुत कथा कहुई बर्तमान जो 2020 मसीहा शिक्षा नीति से अति चमत्कार कथा सब कहुई 3 वर्ष रु 6 वर्ष पर्यंत शिशु मान किमिति शिक्षा दिया अति चमत्कार किंतु वर्तमान अंगनवाड़ी जो अवस्था बहुत अंगनवाड़ी रे घर नहीं बहुत अंगनवाड़ी रे पीवा पानी नहीं टॉयलेट रो सुविधा नहीं एवं अंगनवाड़ी दायित्व जो माने अछंती सेमानकर योग्यता केते सेमान कोबले भाव रे तालीम पाइचती सेमान को जदि हम उपयुक्त तालीम न दबा एवं तालीम दबा पई खर्चर आवश्यकता रही आमे जदि जीडीपी रो जदि से 3% खर्च करूथबा आमे शिक्षार मान पाई परिबा कि 1964 मसीह रे कोठार कमिशन कहिथिले कि जीडीपी रो 6% शिक्षा रे खर्च होगा बांछनीय नहले शिक्षार मान वृद्धि होब नाही आमे 50 वर्ष परे मध्य आमे से तार अधा रे अछु से 3% रे रचु तेनु 3% व्यय करूथबा बेले आमे किमिति शिक्षार मान पाई परिबा एई जो घोषणा करा जाउची एवं तार कार्यकारिता या भीतर एते पार्थक्य रहउची से पार्थक्य जो सब तारतम्य होची जदि घोषणा करिबाटा जदि कार्यकारी हे पारुथांता ताहले हमर काहरी संदेह न थांता बा आमे केही ये प्रश्न तो उठी न थांता आमे तो सहजरे सब ग्रहण करि नियंते रमेश पत्रे आज्ञा प्रश्न रखंतु सर नमस्कार सर मु दीप्तिमयी प्रतिहारी सर मु प्राणनाथ स्वयं शास्त्र महाविद्यालय खोर्धा रु कहूची युक्त 2 द्वितीय वर्ष विज्ञान छात्री सर मोर गोटे डाउट थिला जे जेते बळे आत्मनिर्भर भारत कथा हमें उठाओ जहां भी करू तो सेते बळे हमको फर्स्ट गांधी जी को कथा आसे गांधी जी को सबले कहते जे माने आमे निजे समस्त जानिचे जे भारत होचे हमर ग्राम्य बहुल देश कृषि प्रधान देश तो जहाँ गांधी जी भी गोटे आशा थिला ताको जो स्वराज रे आशा थिला जे जहाँ भी शिल्प प्रतिष्ठा करो सर्वप्रथम गाँव रु आरंभ करो बोली हमें आज देखुचे एबिकार ले जेते शिल्प प्रतिष्ठा होची आरंभ होची बड़ बड़ सहर मानकरे जे बड़ बड़ उद्योग मान प्रतिष्ठा मान हो राउजी तो सर सेटा को ट्राई करिबा आमे माने चेष्टा कले ताकू आमे गाँ मानकर प्रतिष्ठा कले गाँर लोक माने भी स्वावलंबी हे परिबे एवं से माने रोजगार पंथा मध्ये पाई परिबे आ गोटे सर क्वेश्चन में सर जे भाबु जे देह सिटे उठुचे जे आम देशर आमर टैलेंट जे बाहर देश रे अन्य कोठी माने चाइना हो अमेरिका हो कौन हो से देश एते बड़ बड़ देश मानकर रही कि माने निजर कलाटा को सेठी प्रदर्शन करछथि हमर एपडी नियुक्ति सर प्रतिष्ठा होबा दरकार जेमिते कि आम देशर बुद्धि आमरी देश रे ही लागू काहे कि ना एबे मो मेसेज बॉक्स रे देखुतली बहुत विशिष्ट लोक माने मध्ये कहिले जे आम ए कंपनी यार एमाने या करछथि ता करछथि किंतु आमे निजे आत्मनिर्भर भारत कहते किंतु सर तो सेटा एते सहजरे संभव हे परिबनि आउ बाहर देश रो मगेबा कथा तो आमे से निजे सब प्रोडक्ट को निजे कंडक्ट कर सर मु कहूची जे आत्मनिर्भर भारत ता भूल बोली मु कहूची आत्मनिर्भर भारत हो पई टाइम लागिवो से समस्त सहयोग निहाती दरकार आउ समस्त सहयोग न हेले जदि प्रधानमंत्री केवल कहि देबे तो देश नागरिक सेठी सहयोग न करिवे ताल तो सेटा हे परिबनि ना मु एई गोटे कथा कहिबे एटी आपण जा आपण को ये मन भीतर तो अनेक प्रश्न आसीबा स्वाभाविक किंतु गोटे कथा होची मु एटी पुणे से लाल बहादुर शास्त्री को आनिबे कि जो जय जवान जय स्लोगन जो गोटे योजना से मते गोटे थिला आमे तो स्लोगन बोली कहते मते जय जवान जय किसान गोटे जो योजना तैयारी करथिले कि योजना फल आमे खाद्य शस्य रे आत्मनिर्भर हो पारिबो कारण 1964 मसीह ये जो योजना टी आरंभ है ता पूर्व आम खाद्य शस्य तो बिल्कुल आम खाइबा को पाउनथिले आम बाहर देश जो आमदानी करुथिले तेणु ये गोटे गोटे क्षेत्र में सफलता पाइबा आमको गोटे गोटे योजना घोषणा करने को पड़े
ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ସଫଳ ରୂପାୟନ ସେ ଯୋଉ 5ଟି କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟାର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୋଏଡା ଭିତରେ ସେ କେତେ ହଜାର ଏକର ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବିଜୁଳି ରାସ୍ତା ଏବଂ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ଚୀନରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2-3ଟି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାରତ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସେ ସେମାନେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ରହିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ବା ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତେ ସେଠି ବିଜୁଳି ପାଣି ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେଡ୍ ये सब गुड़िक तैयारी करके रखते 50टी हो 100टी हो जो उद्योगी माने जो युवक युवती माने चाहिए सरकार स्कीम रहता कि यही शिल्प आम प्रोत्साहन दबु सब भित्तिभूमि प्रतिष्ठा है आसिले शिल्प प्रतिष्ठा करें। किंतु जड़े युवक 20-22 वर्षर जड़े युवक युवती एमाने जाइकी घर तैयारी करिकी इलेक्ट्रिसिटी नेबे पानी नेबे तापर शिल्प आरंभ करेंगे ये तो एम पक्ष के संभव हम ना से समय और शक्तिर अपचय घटव। तेणु प्रति ब्लॉक रे मोर अनुरोध राज्य सरकार को केंद्र सरकार को अनुरोध से गोटे स्कीम करंतु आत्मनिर्भर योजना को आत्मनिर्भर भारत को सफल करने प्रति ब्लॉक रे गोटे इंडस्ट्रियल शेड तैयारी करंतु 10टी हो 20टी हो सेठी एवं से गोटे गोटे स्कीम रखु जहाँकि ग्राम्य उन्नति रे सहायक हम। ग्राम्य जो युवक युवती माने अच्छी से चाकरी पछरे जीवे ना गोटे शिल्प गोटे उद्योग जदि 10टी व्यक्ति 10 जन व्यक्ति जदि रोजगार पाइबे 10 जन व्यक्ति माने आपनकर 50 जन हो गले गोटे परिवार को जदि आम नबा जदि ब्लॉक रे जदि एभली 10टी 20टी जदि शिल्प प्रतिष्ठा हो पारे क्षुद्र बा कुटीर शिल्प तापई भित्तिभूमि आवश्यकता भित्तिभूमि प्रतिष्ठा आवश्यकता रही। यदि भित्तिभूमि प्रथम प्रतिष्ठा न हम ताहले कहीं शिल्प प्रतिष्ठा आगभर हेबे नाही। जड़े आसी बिजुली संजोग नहीं शिल्प आरंभ करेंगे एवं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दौड़ी दौड़ी समय चली सी जो हतोत्साहित हेबे ता अपेक्षा यही जदि भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हो जाए जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्व आरोप कर शेष 5टी जो आई रही तार शेषटी हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर आम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करके दबु जो मैंने आग्रही अच्छा से शिल्प प्रतिष्ठा आगे आसतु यही जो मान पाखे टेक्नोलोजी अच्छी इनोवेशन अच्छी आइडिया अच्छी से आसतु आम से सब भित्तिभूमि जोगे दबु ये भित्तिभूमि पारे आत्मनिर्भर भारत योजना सफल हो पार। आउ गोटे भी सर आमर युवपीढ़ी वर्तमान आपण तो निजे भी देखुथिबे जे राजनीति क्षेत्र ठू नहीं कि शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सब क्षेत्र में आमे देखिबा प्रायतः युवपीढ़ी माने एथरे अंशग्रहण करबा को माने कोन इच्छुक ही नुहंती समस्ते राजनीति कथा भी आपण देखंतु समस्ते कहबे जे राजनीति होची गोटे गटर राजनीति की सफा करिया सड़िया भितर की पसिबो किंतु कहीं माने सेमानक भितरु कहीं जणे भी चिंता करिबेन जे जदि आमे समस्त सेम भाबीबा जे राजनीति होची अलिया बनी तेबे ताकू सफा करिवो की जदि युवपीढ़ी आमे जदि माने 18 वर्ष हैला परे आमे जो देशर नागरिक होउचे आमे जो गोटे देशर शासन भार संभाळिबार बयस मानसिकता हमर आसुची जदि सेमाने जदि एमिति कहिबे तेबे देश को आगु बढ़ेबो की ए जो वयस्क पोषक नेता माने रहिबे सेमाने केते दिन पर्यंत देश को आगु बढ़िया चेष्टा करिवे
ସେଇ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଯୋଉ ରହି ଯାଉଛି ଏବେକାର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ନା ଏଇଟା ୟାର ଆମେ କରିବା ନୁହଁ, ଏଇଟା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ କାମ, କି ଆମ ଘରେ ଘର ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏ କାମ ତୁ କର ନା କି କଣ। ତ ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ବି କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ମାନେ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଏଭଳି ମାନସିକତା ରହୁଛି ତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳେଇବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ତେବେ ଆମେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସହମତ ହେବି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ এইভাবে আলোচনা বিতর্কর আবশ্যকতা রয়েছে। যে সচেতনতা সৃষ্টি করা আমি যে সচেতনতা সৃষ্টি করা আমার কাম হল সচেতনতা সৃষ্টি করা। এই যে আজ যে আলোচনা চক্রটি হল যে আয়োজন করা গলা এই আলোচনা চক্র আয়োজন করার আভিমুখ্য কণ? আমি চাইলে আত্মনির্ভর যে ভারত যোজনা রয়েছে আমি সেথিরে কিছু করি পারিবা নাই, কিন্তু আমি গোটিয়ে বহুত বড় কাম করি পারিবা। আমি সে যোজনা সম্পর্কে গোটে সচেতনতা সৃষ্টি করি পারিবা। জনে জনে ব্যক্তি মু জানুছি উই আর অল চেঞ্জ এজেন্টস অফ চেঞ্জ। আমি মু জনে ব্যক্তি মু চাইলে 10 জন ব্যক্তি প্রভাবিত করি পারিবি, সে 10 জন ব্যক্তি আউ 10 জন ব্যক্তি এইমিতি ভাବରେ গোটে গোটে লেখা মু দেখিছি, গোটে গোটে স্তম্ভ, গোটে গোটে লেখা তার প্রভাব অনেক রয়েছে। অনেক ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছেন, অনেক ব্যক্তি পড়িছেন, করিপারিবার শক্তি নাই, কিন্তু সচেতনতা সৃষ্টি হেলে এটা এতে স্লো প্রসেস যে তার আমি আসন্তা কালি তার কিছু প্রভাব জানিপারিবা নাই, কিন্তু সে প্রভাব ধীরে 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 এমিতি তার প্রভাবটি পড়ে। আজি আমি যে পরিবর্তন দেখুছু এই কিছু বর্ষ হল আমি যে রাজনীতি ক্ষেত্রে হও বা সামাজিক ক্ষেত্রে হও যে পরিবর্তন দেখুছু ইয়ে পরিবর্তন আকস্মিক নুহে। ইয়ে গোটে মানসিক স্তরে আমি যে প্রস্তুত হয়েছিলে, মানসিক স্তরে যে পরিবর্তন পাই অপেক্ষা করিছিলে সে পরিবর্তন বর্তমান আসিছে বলি আমি কহিবা। এবং গোটে দৃঢ়তার সহিত আমি এতে বর্ষ ভিতরে মু এটি গোটে কথা কহিবি, এতে বর্ষ ভিতরে চীন কু বা চীনর শক্তি কু প্রতিহত করিবা পাই কোনসি সরকার পদক্ষেপ নেই নথিলে। যে আজি এই বর্ষ আক্রমণ কলা তা নুহে, সে মঝিরে মঝিরে আসুছিলা, 10 হাত পশি আসুছিলা, 5 হাত ফেরি যাউছিলা এবং আম সরকার নীরব রহিছিলে। বর্তমান গোটে কথা হইছি আমি যে সরকার যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নউচন্তি এ পদক্ষেপ নেলা ফলরে কাশ্মীরে যাহা দীর্ঘ বর্ষ ধরে চালিଥିଲା, কাশ্মীরে যাহা চালিଥିଲା আমি সমস্তে জানিଛନ୍ତି। গোটিয়ে দেশ ভিতরে দুইটি সংবিধান রহিব, গোটিয়ে রাজ্যরে আমার জাতীয় পতাকা উড়ি পারিব ନାହିଁ, এই প্রকার যে ব্যবস্থা ଥିଲା ये परिवर्तन आकस्मिक नुहे। आम दीर्घ वर्ष धरी अपेक्षार थिले, आम अपेक्षा मानसिक स्तर में अपेक्षा करथिले बोली से समयटा आसी पहुंचला। तो ये जो सचेतनता सृष्टि होता दीर्घ वर्ष धरी तार प्रभाव आम देखिले। तो आशा करबा आमे आमर यार फलाफल आम आसंता काली हुए पाई परिबा नाही, किंतु आगामी भविष्य रे निश्चय यार फल मिलिबो ए विषय मु संपूर्ण आशावादी। तमे जहा कहूत मुझे संपूर्ण एकमत। आम जो युवपीढ़ी माने आज राजनीति में प्रवेश करने कहते अलिया आगामी किछि वर्ष पर राजनीति समान को आह्वान करवा आस, जो मैंने टैलेंटेड, जो मैंने युव, जो मैंने शक्ति, जो मैंने देश गठन में जो मैंने ब्रती हे से मैंने आसतु कि से मैंने राजनीति में प्रवेश करंतु बा देशर शासनभार ग्रहण करंतु। ये गोटे परिस्थिति आसीबो, ये गोटे समय आसीबो, मु एथिरे संपूर्ण आशावादी। चिंताधारा एमती प्रश्न रखी पार्टी वक्ता पाखे से बहुत धन्यवाद दीप्तिमयी। बहुत धन्यवाद, मुझे तो बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद दूसरी तुम ये बयस माने चिंता नहीं करी एमती प्रश्न रखी पारुछ। सर संतोष भाई, संतोष सर कौन कहतु नहीं आउ के प्रश्न करते मुझे नहीं या भितर गुड़े प्रश्न आसला। आज्ञा आज्ञा
ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ବୋଧେ ଗୁଡେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଉପରେ ଗୁଡେ ପ୍ରାୟ 20-25ଟା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅମଳରେ HMT ଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅମଳରେ ସୋନି ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବା ଯାହା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଏଡ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ମେସେଜ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ 1970 ମସିହାରେ ବାଉଁଶ ଠାରୁ ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ। ହଜାର ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କଲେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିରେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତା ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି କି ବଢିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। SSI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା MSME ଏବେ ହେଇଗଲା। ୟା ମଝିରେ ଆହୁରି କଣ କରିଥିଲା 50 ଥର ତା ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ କେତେ ବଢିଛି କମିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗଲା 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ 35 ବର୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଛି IRDP ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୋଜ, IRDP ସେକେଣ୍ଡ ଜୋଜ, GRP, GKY, ସେ ERRP, PMGP, PMRI, SU, CU, SEPOP, STEPOP, GEPOP, GPOP ଏତେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରାଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆସିଲା, ଗ୍ରୁପ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ SSG ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶିଖିକି ଆମେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିତର୍କ ନ କରି ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହବାକୁ ହବ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସଜେସନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବିତର୍କକୁ କେବଳ ବିତର୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେବା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କିଛି ଲାଭ ରହିବନି। ଆମେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆମେ କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ ଆଗଠୁ ପାଇବୁ, ଆମେ ଉପକୃତ ହବା, ଏ ସମାଜ ଉପକୃତ ହବ। ଆଉ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ବେକାର ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ହିଁ ହଉ, ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କାହିଁକି 3 ଗୁଣ ହେଲା? ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 3 ଗୁଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁତକ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାଟ ର ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏଠି ଫୋରମରେ ପଚାରିଲେ ଆମେ କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେବୁ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେବୁ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନେ ରହିବା ଦରକାର, ଉଚିତ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏଠି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଯୋଉ ଯୋଜନାଟି ହେଲା, ଯଦି ସେ ଯୋଜନାଟି କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧେ ରାଜରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଡି ହେଇଛି ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯୋଜନାଟି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସେ ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବା ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବା ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ସବୁ ଯୋଜନା ଏକା ଭଳିଆ। ଭାରତକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଭାରତକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥନୀତିରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ଭେଦଭାବକୁ ବନ୍ଦ କରି, ଭେଦଭାବକୁ ଲୋପ କରି ଆମେ ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ଅର୍ଥନୀତି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣ ତା ଦେହରେ ଭାଗିଦାରୀ ନେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଆଉ ପୁରାଣରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଗରେ କିଏ କଣ ଭୁଲ କଥା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ବହି ଖୋଳିବାକୁ ଯିବା, ଏ ତ ଆମେ ଆଉ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଆମେ ଆଉ ଲାଭ କଣ କଲେ ତାହେଲେ? ଆମେ କିଏ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ଠିକ କରିଛି, ସେ କୋଉ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଆଜି ଯୁଗ, ଆଜି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ଫିଟ୍ ହଉ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ କିଛି ନିଜେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଜନା ସଫଳ ହବ, ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଯୋଜନା ଆପଣ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଯୋଜନାକୁ ସବୁ ଗୁଡା ଯୋଜନାର ପଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନସିକତା ଥାଏ, ଖରାପ ମାନସିକତାରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାସ୍ତା ଚଉଡା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଚଉଡା ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ରାସ୍ତା ଜାମ୍, କାରଣ ସବୁତକ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ କେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ 3ଟା ଲେନ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁତକ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆପଣ ଛକ ଦେଖିବେ, ସବୁତକ ଛକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍, କାରଣ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ଠିଆ ହେଇଛି। କେହି ତା ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଟ୍ରକ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ,
ଏବେ ସବୁତକ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁତକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡରେ ଟ୍ରକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ସରକାର ତ ବାଡ଼ି ପକେଇ ଦେଖୁନି, ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମର, ଏକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସଜେସନ ଦେଇପାରିବା କି ସରକାର ବାହାରୁ ରୁଲ କଲେ ଏ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କଣ ସଜେସନ ଦେଇପାରିବା, କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା କରିବା। ଆଉ ତାକୁ ତାହା ନକରି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବହି ପୁରାଣ ଖୋଲିବା, ଇଏ ଅମକି କରିଥିଲା ସେ ସମକି କରିଥିଲା ଏକୁ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଆୟୋଜନ କଲେ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଭଲ କିଛି ସଜେସନ ଦେବା ସମାଧାନ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇ ସଜେସନ ଦବାର କଥା ଭିତରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦିଟା ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କେମିତି ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ଦିଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ତାର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି ଆଭେଲେବୁଲ କୋକୋନଟ୍ ନା ନାଇଁ। କୋକୋନଟ୍ ର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ନେଇକରି, କତାକୁ ନେଇକରି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଯୋଉ ନେଇକରି ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହବା କଥା, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଟଅପ୍ କରି ଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶରେ ଯୋଉ ସୁରଟରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମ କିଛି ଯୋଗେଇ ଦିଆ ପାରନ୍ତା, ଯଦି କତା ଶିଳ୍ପକୁ ମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆକାରରେ ବା ଅଣୁ ଶିଳ୍ପ ଆକାରରେ ନେଇକରି ତାକୁ ଯଦି ବଢେଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେମାନେ ଗାଁରେ ତିଆରି କରିବେ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହଉଛି ସେମିତି ଯଦି ଏଇ ଅଣୁଶିଳ୍ପ ମାନକୁ ନେଇକରି ଯଦି ତା ମାର୍କେଟିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ସେଇ ମାନେ କତା ଶିଳ୍ପଟା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ କେଉଡା ତିଆରି ହଉଛି, କେଉଡା ମାନେ ଯୋଉ କିଆ ଫୁଲଟା ସେଇଠୁ ତିଆରି, ସେଇଠି ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ କନୌଜର ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କନୌଜ ଆଉ କାନପୁରର ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି, ସେଇଠି ନେଇକି ଅତର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅତର ତିଆରି ହେଇକି ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ସରକାର ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କନୌଜରେ ଯାଇକି ତିଆରି ହଉଛି ଅତର, ଯଦି ଏଇଠି କିଆ ଫୁଲଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକି ଗଞ୍ଜାମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ କେଉଁଟାର ମାନେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁରତ, ସେମାନେ ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇକି ରହନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଯଦି ସରକାର ଏଇ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ କେଉଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଭଲପ କରନ୍ତେ, ଆଉ କେଉଡା ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ ହେଇକରି କନୌଜ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା କାନପୁର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାହା ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଅତର ତିଆରି ହେଇକରି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋର ଦିଟା ମୁଁ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥା ଆସୁଥିଲା, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ୱେବିନାର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସାରିବା। ଆଜି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଥିଲା, ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଅଭୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିଲେ ବିଷୟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି ବଦଳେଇବା ଏ ବଡ କାମ। ଆମ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିବା ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବା, ଯୁବକଟିକୁ ଆଶା ଦେଇପାରିବା। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହତୋତ୍ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ଆମ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇ ପାରିବା, କିଛି ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମ ହବ।
ଇଏ କଣ ଅତୀତରେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ନ ଭାବିକି ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ବଡ କାମ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଭାରି କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉମାନେ ପରିଚାଳନା କଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଭୟନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଡ ମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଏ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଭାଗ ନେଇଥିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ଦେଶକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ଛିଡା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ବି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେ ବି ଆମର ଭାଇ, ଯିଏ କିଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବି ଆମର ଭାଇ। ଯୋଉମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭାରତ ତିଆରି କରିବା, ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆସିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରଖୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସଭାପତି ଅଭୟ ବାବୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କୁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ଜୀବନରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।